A very good morning to everyone. On behalf of Soup Dupe Family by Era Cultural, we welcome all the parents to this Need of the Hour show on how do we all win the corona battle, especially for our kids. I am Servani Edavalli. I work as a supply chain advisor and I'm an Indian classical dancer. I would be moderating this session with one of the most notable pediatricians, Dr. Madhavi Bharadwaj. We are all in the same boat, unsure of what is correct, what is wrong, what to follow and what not, especially related to our kids. I'm here today not only as a moderator, but also as a mother of two kids who would like to understand more about how to give the best to our kids during these challenging times. I have so many questions every day, and I don't know what is the correct information. And I'm so glad I'm here talking to the right source, the person who can create a lot of awareness and who can actually give us the truth on how do we win this corona battle for our kids. Welcome, Dr. Madhavi Bharadwaj. Thank you. Thank you so much, Sarvani. And thank you, Sabda, for creating this platform. You rightly said, much needed, call of the hour. Lekin, I think सबसे important चीज, the most important thing with which I would like to start our session is, please don't panic. Okay? It is very difficult, especially when your near and dear ones, your kid, part of you gets sick or otherwise, please don't panic. You need to stay in positive energy, happy vibes for you and your babies to be happy, healthy, and well. Otherwise, okay? कैसे Yeah, हम सेशन yeah. शुरू करेंगे? सार्वती, over to you. Yeah. So with this great note, I think, that's if we want to give the best one-line summary, what you have started is great. Do not panic. Yeah. We have to be happy so that, our kids will see us and that's all they see, right? If we are happy, they are happy. But I think before going into the session, let me just talk a few lines on our guest today. We want the viewers to have a brief understanding of who we are and who is our guest today. So please give me 2 minutes, Dr. Madhavi. So our guest today is a notable pediatrician, and especially, she connects to all of us because she's also a mother of a toddler. She has received a gold medal as the best pediatrician in 2006 in MAMC. She has also worked in COVID pandemic in the biggest Delhi government hospital last year during the first wave. We are so glad you're taking time out and you are here with us, Dr. Madhavi. Thank you so much. Pleasure is all mine. Yeah. एक्चुअली मैं आज हमारे व्यूअर्स मोस्टली पेरेंट्स ही हैं एंड आई एम थिंकिंग कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बोलना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे अभी तक मैंने जहां जहां काम किया है वहां के लोग भी जुड़ रहे हैं तो Yeah. born and brought up in Delhi, studied there. I've done my graduation from Lady Harding Medical College, Delhi. And then I did my post-graduation from Maulana Azad Medical College, again, Delhi University. But I was working there only 2017 to 20. So last 1 year of my senior residency was all about COVID. And then, yes, our hospital was converted into a COVID facility. It was the biggest Delhi government hospital, and we've been managing babies, small babies, big children, even adults, because then डॉक्टर्स इतने कम थे कि फर्क नहीं पड़ता पीडियाट्रिशियन बच्चों का स्पेशलिस्ट है कि बड़ा है अगर कोई 60 ईयर ओल्ड 80 ईयर ओल्ड भी हमारे पास आ रहा है और बच्चों के वार्ड में बेड है तो वी हैड टू एडमिट हिम Yeah. टू इवन आवर आईसीयू एंड वी मैनेज देम सो ऐसा टाइम नन ऑफ अस एवर थॉट हमारी या हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने ऐसा टाइम नहीं देखा है तो एनीवे तो वहां काम करने के बाद आई वेंट टू दिस स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा सिरसा एंड आई वर्क देयर फॉर लास्ट 8 months आई वाज वर्किंग देयर वहां के भी बहुत सारे पेरेंट्स और उनके में मतलब आसपास के लोग जुड़े हैं जो बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं समझ सकते होंगे Yeah. तो हिंदी में भी हम आज बात करेंगे डोंट वरी Yeah. आपको सबको समझ आएगा जो जो मैं बोलूंगी और Yeah.
lastly, presently I'm in Chandigarh, Zirakpur to be exact. I'm working here and plan to work here for the near future. Yes. Yeah, yeah. So, uh, huh. Thanks for letting us know, Dr. Madhavi. Yeah, it is indeed like, whatever language people can understand. Yeah, if you can cover in both the languages, yeah, that's well and We good, will because do. the complete intention of this session is actually to create that awareness and help as many parents as we can, right? So yeah, so what we did is, as super duper on behalf of the super duper soup dupe app by Ira Cultural, we have floated this session, and we have asked our parents to actually send their questions to us, whatever they want to know from you. So what I'll be doing is I'll be quickly asking those questions. And to all the viewers who are viewing this show, thank you so much for joining. If you have any questions which are really related to you, please don't think that it's very personal to you. Dr. Madhavi would be very, very happy to answer your questions. So please type in your questions in the chat box, and we will take the questions as and when we can. So, Dr. Madhavi, we would like to start the show with the first question, and probably taking it in a very generic way. Can you please let us know, what are the things we should keep in mind when we step out? First of all, is yes, we understand staying indoors, but anything, what are the primary things we should keep in our mind during this pandemic? I think, yeah, Dr. Madhavi is joining. I can see a little bit delay, so I request all the viewers to kindly be on the line. Doctor will be back very, very soon. And yeah, Madhavi, thank you so much. I think we lost you for a bit. So we would like to start the session by understanding what are the things we need to keep in mind during this pandemic, especially as parents to young ones and, toddlers and the teenagers. See, right now, my one advice to all of you would be stay at home. Okay. Before stepping out, I'm not talking about taking your kids out. You yourself, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, तो ये सोचो, you have to weigh risk versus benefit. इतना important काम है क्या कि अगर आप में से किसी को गॉड फॉरबिड कोविड होता है बाहर निकलने से, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? इतना इंपॉर्टेंट काम है क्या कि कोई बात नहीं, कोविड भी हो जाएगा पर ये काम तो मुझे करना है। ठीक है, तो प्लीज डोंट स्टेप आउट। everything can be managed from home these days. Up, you can work from home. You can get your groceries at your doorstep. Everything is available. Please don't step out. See, second wave had to come. I will not say कि वो नहीं आने वाली थी, but the proportion, the size it has taken, that is because of our own carelessness. Yeah. Even today, when I talk to my friends staying in Delhi, doctor friends, they are actually disappointed in rest of us, मतलब us as citizens of this country. अभी भी बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं. See, this is not the time to fall sick. I'm not just talking about COVID. Other than COVID also, कोई और मतलब टाइफॉइड हो गया, कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई कैंसर, कुछ भी बीमारी है. Even people who are dying of other diseases, they are also not getting any treatment anywhere. ठीक है, Yeah. तो please don't step out. First thing, and then if you have to, yes, you have to. वही तीन चीजें हैं जो आपको, मास्क हाइजीन, हैंड हाइजीन, एंड देन यस, टेकिंग केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स. कोई भी चीज कहीं पर भी रखना, सी, एवरी सर्फेस इज अ पोटेंशियल फोमाइट. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर बिलोंगिंग्स व्हेन यू गो आउट. हम उसमें और डिटेल में हम बात करेंगे. आई थिंक जो क्वेश्चंस मुझे पहले से शेयर हुए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस भी बहुत रिलेटेड टू, मतलब यही सब है कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे स्प्रेड हो रहा है, क्या सिम्टम्स हैं बच्चों में. तो आई थिंक या तो हम क्वेश्चंस शुरू कर सकते हैं, सार्वनी, Yeah. इफ Yeah. Yeah. So the next question is, especially for kids, what are the symptoms? Because these days, what happens is anything happens, yeah, we are getting panicked. Yeah, we don't know whether it is corona or not. So especially, how do we know whether we should be alert and reach out to doctors? What are the symptoms, especially in kids, for corona? Okay, so first thing I want to say is the time to panic or to think about what you are going to do is when you step out of the house. But once your child,
you or anybody near you is sick, please don't stay in denial. Abhi bhi I get patients who come with any XYZ complaint, and when I tell them कि this might be COVID, please be careful. नहीं नहीं नहीं, कोविड नहीं हो सकता है, तो बच्चे ने ठंडा पानी पी लिया था इसलिए गले में किचकिच है, और समथिंग लाइक नहीं कल पार्टी में गया था ना, वहाँ केक खा लिया था तो इसीलिए इसकी नाक बहने लगी है. See, it doesn't work like that. Please don't stay in denial. बच्चों में सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं, किड्स विल मेक इट थ्रू, बट इफ यू डोंट टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस, अगर ये बड़ों में जाता है, इस सेकेंड वेव में इट्स नॉट जस्ट अबाउट एल्डरली पीपल, इवन यंग एडल्ट्स आर गोइंग थ्रू हेल. आई एम टेलिंग यू, it's bad. We cannot predict a 25-year-old, a 35-year-old, or a 45-year-old is also going on vent, and the course is absolutely unpredictable. कोई डॉक्टर किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता आज की तारीख में. कोविड हैज बिकम दैट अनप्रिडिक्टेबल. एनीवे, अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे बच्चों में, तो कॉमन सिम्टम्स ये सबको भी पता है, जुकाम, खांसी, गले में किचकिच, फीवर, दैट वी ऑल नो. बट यस, देयर आर सम अदर सिम्टम्स आल्सो लाइक रैश, रेड स्पॉट्स, या हिंदी में बोलते हैं अर्टिकेरियल रैश, इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में दाफड़ बोलते हैं कुछ लोग, या रेड उभरे हुए पैचेस बॉडी पे आ जाते हैं, छोटे 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 मीजल्स लाइक रैश हो सकता है, फेस पे रेड रैश हो सकता है. सो यस, रैश इज वन सिम्टम. पेन एब्डोमेन, नॉन स्पेसिफिक पेन एब्डोमेन, जिसमें आप एंटासिड दवाइयां देते हैं, गैस की दवाई जिसे बोलते हैं, आप वो दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, कुछ भी दे दो, दैट पेन विल नॉट गो, इट विल कम एंड गो. मतलब चलता रहता है उसका, इट विल टेक इट्स ओन टाइम. पेन एब्डोमेन, लूज स्टूल्स, वॉमिटिंग, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, दाने निकल जाना शरीर में, जुकाम, खांसी, सर में दर्द, आंखों में दर्द, आंखें भारी हो जाना, थ्रोट, ड्राई थ्रोट, मुंह सूखना, गला सूखना, ये सब अभी कोविड के मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं. कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपके बच्चे को प्रॉब्लम या आपको प्रॉब्लम लगती है, एनीथिंग अदर देन नॉर्मल जैसे आप रोज रह रहे हो, वो कोविड की वजह से हो सकता है. ठीक है, तो सतर्क रहें, प्लीज स्टे अलर्ट, सावधानी पूरी बरतनी है. बट यस, इफ यू फील कुछ भी समथिंग इज रॉन्ग, प्लीज डोंट हेजिटेट इन सीकिंग अ डॉक्टर. अभी बहुत सारे डॉक्टर्स फ्री एडवाइसेस भी दे रहे हैं, फ्री कंसल्टेशंस भी दे रहे हैं. प्लीज फॉलो देयर एडवाइस. डॉक्टर्स टेल यू टू फॉलो अप आफ्टर 3 days, 4 days, प्लीज डू दैट. ओके, क्योंकि कोविड में फर्स्ट 1 week इज स्टिल कुछ सिम्टम्स रहते हैं, बट कॉम्प्लिकेशंस अराइज यूजुअली इन सेकेंड वीक. और अभी जो हमारा करंट यूके स्ट्रेन बहुत ज्यादा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जो मेन स्ट्रेन है, उसका तो अगर मतलब थर्ड वीक में जाके भी कॉम्प्लिकेशंस चलते जा रहे हैं. ठीक है, तो कोविड हैज एक्चुअली बिकम वेरी अनप्रिडिक्टेबल, वेरी अनप्रिडिक्टेबल. प्लीज स्टे इन कॉन्टैक्ट विद योर डॉक्टर. Yeah. Thank you so much for sharing the corona symptoms. And the next thing we want to understand is, like, there are a lot of myths related to COVID spread. And especially these days, we were mentioned that kids are the, carriers. Yeah. So can you let us know what are the typical myths that are there, and can you break them for us so that, we are there in awareness and we know what is true, what is the truth? Okay, so very commonly we hear it on news channels. I've heard a few good doctors also talking about it in various talks. Last year, kids were not getting as affected as the second wave is affecting. So last year, COVID India में तब तक आया भी नहीं था. बहुत मीडिया स्केयर और everything was created in a way कि we were all locked up inside the houses. Yes. Kids were specially taken care of. आप लोग, बच्चों को स्कूल बंद हो गए थे, बच्चों को आपने पूरा अच्छे से अंदर रखा हुआ था, और पहली बार हुआ था ना सबकी लाइफ में, तो यू वर वेरी केयरफुल. ओके, ऑल ऑफ यू वर वेरी गुड, यू वर डूइंग एक्सीलेंट, बच्चे अच्छे से प्रोटेक्टेड थे. उसके बाद कब तक झेलेंगे, कब तक करेंगे? किड्स went to schools also, they came out, they started going to parks and then swings and everything, common carrier places जो बच्चों के लिए होते हैं. अभी तक भी मेरी खुद की बेटी जिद करती है, अब 2-3 दिन से उसका बंद हो गया पार्क में जाना, तो शी इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल एट होम. सो यस, आई अंडरस्टैंड, बीइंग अ मदर टू अ 3-year-old, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप किड्स एट होम. तो हाँ, सब बाहर निकले. सेकेंड वेव जब आई है तब हमारे बच्चे ऑलरेडी बाहर थे, तो ये बोलना कि पहला वाला स्प्रेड नहीं कर रहा था बच्चों में,
और अभी वाला बहुत ज्यादा स्प्रेड करना है, कंपैरिजन वुड बी रॉन्ग, बिकॉज बाकी जो फैक्टर्स हैं जो स्प्रेड को अफेक्ट करते हैं वो सेम नहीं है। अभी आपके बच्चे बाहर थे तब आपने अंदर रखे हुए थे, तो स्प्रेड दोनों में पिछली बार भी था, इस बार भी बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, पिछली बार भी थे। यस, दिस टाइम मोर किड्स आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज दे वर नॉट दैट वेल प्रोटेक्टेड, मतलब घर में नहीं थे। दूसरी बात, कोरोना बच्चों में नहीं फैलता है ऐसा नहीं है, कोरोना बच्चों को भी अफेक्ट करता है, वैसे ही करता है जैसे अडल्ट्स में करता है, बट यस, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बिल्डिंग का टाइम होता है, स्पेशली स्मॉलर किड्स। इफ यू रिमेम्बर, इफ यू हैव अ स्मॉल किड, अ ईयर ओल्ड और 2 ईयर ओल्ड, डॉक्टर की विजिट्स बहुत फ्रीक्वेंट होती है। इफ यू रिमेम्बर, बार बार जुकाम खांसी, बार बार उल्टी दस्त होता है, यू गो टू अ डॉक्टर वेरी फ्रीक्वेंटली। बट यस, अ 5 और 6 ईयर ओल्ड, वो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, यू नीड नॉट विजिट अ डॉक्टर दैट फ्रीक्वेंटली। तो यस, बच्चों की बिल्डिंग, इम्यूनिटी बिल्डिंग का टाइम चलता है ये, तो बच्चों में कुछ ना कुछ कोविड के अगेंस्ट इम्यूनिटी रहती है, बिकॉज कोरोना वायरस पर से इज अ कॉमन कॉज ऑफ कोल्ड एंड कॉफ इन चिल्ड्रन। Before SARS-CoV-2 came, कोरोना वायरस मतलब इसका कोई सिस्टर ब्रदर जीनोटाइप वाज ऑलरेडी इनटू सर्कुलेशन एंड इट वाज कॉजिंग कोल्ड कॉफ इन किड्स। तो बच्चों में थोड़ी बहुत इम्यूनिटी प्रोबेबली रहती होगी, इस वजह से बच्चों में सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, अभी भी माइल्ड हैं, बट हैविंग सेड दैट 95 से 96% बहुत बच्चे आराम से निकल जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस कुछ बच्चों में होती है, एंड यस, दे आर difficult to handle, they also need support and everything, लेकिन पर से बहुत बहुत कम केसेस होते हैं। लास्ट ईयर व्हेन आई वाज वर्किंग इन दैट आईसीयू, यूजुअली kids who had chronic kidney disease, chronic liver disease, whose lungs were already afflicted with tuberculosis और already compromised lungs हैं जिसके, वो बच्चे हमारे पास वेंटिलेटरी सपोर्ट पे जा रहे थे, अदरवाइज आराम से निकल रहे थे बच्चे। बहुत ज्यादा, अगर आप लोग गूगल पेरेंट्स हैं, आप लोग ने गूगल किया है, पढ़ा है, तो अभी बहुत बात हो रही है MISC, मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, विच इज द मोस्ट dreaded complication in kids। बहुत रेयर है, आई एम नॉट सेइंग नहीं है, बट बहुत रेयर है, सो डोंट थिंक वर्स, स्टे इन कॉन्टैक्ट विद योर डॉक्टर, दे विल गाइड यू। मोस्टली बच्चे बहुत माइल्डली आराम से निकल जाते हैं, बट प्लीज, मिथ्स की हम बात कर रहे हैं, पहली चीज तब भी था बच्चों में, अभी भी है। दूसरी चीज, बच्चे स्प्रेड नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चे जुकाम खांसी नहीं है तो ठीक है, शेडिंग ऑफ द वायरस इज लेस, बट सी, बच्चों की हाइजीन इज नॉट एज गुड एज अस। हैंड वॉशिंग, बार बार खांसी किया, जुकाम किया, कुछ भी है तो हाथ बार बार जाके बच्चे नहीं धोते, उनको इतना नहीं है, कहीं भी टच करेंगे मुंह में जाएगा, हाथ नाक में जाएगा, और अपने ही नाक साफ करके कहीं भी टच करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे स्प्रेड नहीं करते हैं, बच्चे भी स्प्रेड कर सकते हैं। देयर आर स्टडीज विच से बच्चों के सिक्रीशंस में वायरल शेडिंग इज ऑलमोस्ट और रादर मोर देन अडल्ट्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे स्प्रेड नहीं करते हैं, बच्चों को हुआ है तो आपको नहीं हो सकता है, बच्चे बहुत माइल्डली निकल जाते हैं, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। बट अगर वो इन्फेक्शन बड़ों को लगता है, उनमें अभी भी मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं फॉलो अप पे हैं कि बच्चों को फीवर है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मेरा फॉलो अप पे पहला क्वेश्चन ये होता है, आप लोग ठीक हो, आपकी वाइफ और आप ठीक हो, अगर मैं फादर से बात कर रही हूँ, घर में बूढ़े लोग हैं क्या, उनको क्वारंटीन करो, क्योंकि बच्चा कमरे में, एक कमरे में बच्चे को बंद करना बहुत मुश्किल है, बच्चा इधर उधर भागेगा, रादर बड़े लोग जो समझदार हैं आप उनको बोलो कि प्लीज आप अपना मास्क लगा के रखो, बच्चे के आसपास ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। मदर को बच्चे से हम दूर नहीं कर सकते, दैट वी विल टॉक अबाउट अ लिटिल लेटर। ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट फीमेल्स या बहुत छोटे बच्चे जिनके पास हैं कोविड के साथ और वो पॉजिटिव है, तो हम बच्चे को कैसे हैंडल करें। बट दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा स्प्रेड करता है, और ऐसा ऐसे डरना नहीं है कि इस वे में बच्चे बहुत सिक हो रहे हैं, स्पेक्ट्रम अब हमको ज्यादा पता है, इसलिए वी टॉकिंग अबाउट मोर सिम्टम्स। लास्ट ईयर वी वर आल्सो नॉट अवेयर अबाउट कोविड एज सच, अभी भी वट एवर आई एम सेइंग इज प्रेजेंट knowledge that doctors and all of us have। कोविड इज इतना जल्दी चेंज हो रहा है ना, और इतना हमें पता भी नहीं है कि आज जो नॉलेज सही है, प्रोबेबली वो एक हफ्ते बाद ही कोई नई स्टडी आ जाएगी जिसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो इट्स चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, बट यस, वी हैव टू कीप अप विद इट।
Sorry, I was muted. So thank you so much, Doctor. So at this point of time, I also would like to read a couple of questions the viewers are asking. So our next question is on the immunity, and there are so many questions on the immunity, how to develop immunity in general. But there are particular questions also. Like, Payal was asking, my son is 5.5 years old, and last year he was suffering with allergic problems like asthma. So especially in these kind of, when people have asthma and other related conditions, how do we improve immunity? So basically immunity in general, and also if you can specifically answer to our viewers questions, that would be great. So immunity is all about good health. We all know this. एक बच्चे की इम्यूनिटी या गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए आई थिंक देयर आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. वन इज ईटिंग हेल्दी. अब आजकल किड्स आर ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड, घर में रहते हैं, जिद करते हैं, पेरेंट्स आल्सो गिव इन. ओके, आई हैव सीन इट, आई माई सेल्फ डू इट समटाइम्स, एंड आई नो यू ऑल हैव बीन डूइंग इट. सो यू गिव इन, चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया, ठीक है, चॉकलेट दे दिया, सुबह भी दे दिया, शाम को भी दे दिया, चीज सैंडविच बार बार बना के खिला दिया. So see, eating, making your kid, eat healthy is a very difficult thing, but that will come only when you also eat healthy. Okay, so kids don't follow commands, kid imitate their parents. जो वो देखेंगे वो बच्चे करेंगे. आप उनको बोलते रहोगे ऐसे करो, कोई फायदा नहीं है. तो यू हैव टू डू इट. सो फर्स्ट थिंग इज ईट हेल्दी. घर पे आप जो भी फ्रूट्स, मैक्सिमम फ्रूट्स दो. सी, कोविड में अगर आपके आसपास किसी को कोविड हुआ है, यू वुड नो डॉक्टर्स आर गिविंग मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी, एंड दे गिविंग विटामिन सी. ओके, सो विटामिन सी आप टैबलेट से खाओ, या आप एक मौसमी 50 mg उसमें विटामिन सी रहता है, मौसमी एक एक सुबह शाम खाओ. दैट विल गिव यू सेम अमाउंट ऑफ विटामिन सी दैट वन मतलब लिम्सी का टैबलेट जो कि गैस्ट्राइटिस भी कर सकता है आपको देगा. ठीक है, तो खट्टे फ्रूट्स, citrus fruits are very important to be in their diet for the immunity to be good. Another thing is all fruits are very rich in all मतलब vitamins and minerals. आपको गोली खाने से अच्छा फ्रूट्स खाओ. अभी सीजन अच्छा है, तरबूज, खरबूजा, और आपका ये ग्रेप्स आर कमिंग, ये बनाना इज देयर. ऑल द फ्रूट्स, एक एक स्पेसिफिक फ्रूट के लिए मुझसे पेरेंट्स पूछते हैं कीवी खा सकता है क्या, चीकू खा सकता है क्या, सब फ्रूट्स खा सकते हैं बच्चे. सो ईटिंग हेल्दी इज वन थिंग, एंड इंक्लूड प्रोटीन इन देयर डाइट. प्रोटीन इज द मेन हीलर, आई वुड से. कोई भी अगर इंजरी या कोई वेयर एंड टीयर बॉडी में होता है तो उसको हीलिंग करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए. तो प्लीज प्रोटीन डाइट में बच्चे के होना चाहिए. Protein, you are all Google mothers, you can always Google your protein rich foods, but I'm telling you the gross things. Protein, yes. Fruits, विटामिन डी का मैं बोलूंगी कि हमारे क्योंकि इतना पोल्यूशन है, जो सन से हमें विटामिन डी देता है, जो कि मेन सोर्स होता है विटामिन डी का, वो हमारे पास नहीं है अभी. तो व्हाट आई डू विद माय patients and my kids, मतलब I call all my patients my kids, so I give them vitamin D maintenance also. उसका कोई साइड इफेक्ट ऐसे टॉक्सिसिटी इतनी मेजर डोजेस में हम नहीं देते हैं. 400 यूनिट्स पर डे का मेंटेनेंस रहता है, लेस देन 1 year old, और उसके बाद 600 होता है. तो वो आप देते रहो बच्चे को, उसका कोई नुकसान नहीं, एटलीस्ट उसकी इम्यूनिटी ऊपर रहेगी. सो ईटिंग हेल्दी. सेकेंड थिंग इज फिजिकल एक्टिविटी. अभी घर में आप बोलोगे, घर में 4 कमरों में बंद रहने को बोलते हो आप, और बोलते हो कि फिजिकल एक्टिविटी कराओ, मतलब ये क्या मतलब है? तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए देखो, अगर आपका घर इतना बड़ा है, इफ यू आर लकी एंड यू हैव अ क्या गार्डन इन योर घर, तो कोई बात ही नहीं है मेरे बोलने की. बैडमिंटन खेलो, बॉल खेलो, वॉट एवर यू कैन प्ले विद योर किड. बट यस, इनसाइड हाउस ऑल्सो व्हाट I do with my daughter is I make her enact stories. Okay, like क्या खरगोश और कछुए की स्टोरी होती है. So I make her खरगोश once and I ask her to run around the house. कैसे भागता है, and then I make her कछुआ and I make her do that squatting और खड़ा होना, वो जो है कछुए का posture है. तो कुछ इनोवेटिव आइडिया लाना पड़ेगा अपने बच्चे को लगाने के लिए. बच्चे हमसे जल्दी बोर हो जाते हैं एक चीज से, तो यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव लाइक दैट. देन यू कैन डू डांस वॉट एवर एट होम. मतलब डांस वीडियोस, कितने स्क्रीन टाइम बच्चे को अगर देना भी है, कुछ लगाया भी है आपने टीवी पे, तो साथ में उसको बोलो डांस करेगा. अकेले नहीं करेगा, शायद आपको साथ में करना पड़ेगा, बट फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो. सो डू दैट, नथिंग रॉन्ग इन इट. 1 घंटा अपने आप को देने में कुछ बुराई नहीं है. एंड थर्ड थिंग, फिजिकल एक्टिविटी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इज पॉजिटिव एनर्जी, विच आई थिंक मैंने शुरू करते भी वही बोला. अगर पेरेंट्स
दादा दादी नाना नानी घर में जो भी साथ में है वो लोग खुश हैं, पॉजिटिव एनर्जी आसपास है, तो पूरे घर की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग यू, पीपल हु पैनिक, who stay in negative energy, they are actually landing up in complication. मैंने कोई ये स्टडी नहीं की है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बट आप खुद अगर ये ऑब्जर्व करने लगोगे तो यू विल रियलाइज जो सिक हो रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है कोविड के, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, मोस्टली वही है जो बहुत जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी उम्मीद छोड़ देते हैं. Your willpower matters. See, COVID, I say, is a mind game. Your body has to fight it. हम लोग दवाइयां रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, मतलब बड़ी बड़ी दवाइयां की हम सब बात कर रहे हैं. सबसे बड़े बड़े यूएस, यूके, बड़े बड़े जो रिसर्च हाउसेस है, थिंक टैंक्स हैं दुनिया के, इवन दे आर नॉट श्योर वेदर दे आर वर्किंग और नॉट. ठीक है, बट हम लोग क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, जब घर का कोई बीमार है, कुछ भी मिल जाए बस वो बच जाए, आप उसके पीछे पागलों की तरह पड़ते हो और वो ड्रग्स ढूंढने में लग जाते हो. हम स्टेरॉइड्स देते हैं, एंटीकोगुलेशन देते हैं, बहुत चीजें देते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, स्टेरॉइड्स देते हैं. इट ऑल बाइज टाइम, बॉडी हैज टू फाइट इट. घूम फिर के बात वहीं पहुंच जाती है, योर ओन इम्यूनिटी, योर ओन बॉडी हैज टू फाइट इट. उसको आपको खुश रखना है, तो पॉजिटिव एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और पॉजिटिव एनर्जी के लिए मेरे को लगता है कि ये चीज तो सबसे पहले आप इग्नोर कर दोगे, पर फिर भी मैं बोलूंगी, योगा, प्राणायामा, मेडिटेशन, they are the key to keep your body in, you know, a balance. बैलेंस आप तभी स्ट्राइक कर पाओगे जब अपने आप को टाइम दोगे. सिर्फ व्हाट्सएप पे, न्यूज़पेपर्स पे या टीवी में नेगेटिव चीजें, न्यूज, ये मर गया, वो आईसीयू नहीं है, वहां बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये सब सुन सुन के बिल्कुल आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलने वाली है. आपको पॉजिटिव एनर्जी अपनी बॉडी में लाने के लिए यू हैव टू सिट विद योरसेल्फ, डू सम योगा, लर्न प्राणायाम. अगर आप नहीं करते, अपने बच्चे की लाइफ में अभी से इनकलकेट करो, ये बहुत जरूरी है. मैं आपको बता रही हूँ, मेरी फैमिली में everybody had COVID. My daughter, she was 2 years old then when I was working in ICU. She had fever. Then my husband had fever for good 17 days. He was tested positive. I did not give him any steroids, any anticoagulation, nothing. I just made him do yoga and Kriya. I follow uh, this Kriya from Art of Living, it Sudarshan Kriya, which I think is very helpful for your immunity. So yes, my father-in-law, mother-in-law, my father-in-law is he survived cancer. He's a cancer a survived patient. So I have इतने comorbidities वाले मेरे खुद के parents इस wave में affect हुए दिल्ली में. They were pretty sick, but they did not need oxygen or anything. Only because I concentrate on these things a lot. और आपको भी करना चाहिए. ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है. दवाइयां देने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन आप अपने लिए क्या कर सकते हो वो सबसे जरूरी है. योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन. सो आई थिंक कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को. 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स: ईट हेल्दी, फिजिकल एक्टिविटी एंड पॉजिटिव एनर्जी इन योर हाउस. योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन. Yeah, thank you so much, doctor. And especially, like, when you are telling about physical activity and being in the positive state. So being a working mother, I always look for ideas, and I think in that way Subdup is also helping in creating all these challenges and making people make their mind in positive energy. It's not only about kids but also like we parents. So when I make my son do some activity, I also like spend good quality time with him, and at the same time they are also getting so many innovative ideas to participate. So yeah, I am getting benefited, and thank you, Subdu, for that. We are having a lot of questions, doctor. So what will we do is, probably we will take the general questions quickly, and probably, at the end, we will also kind of take more personal related questions. Yeah, if you're fine with that. Yeah. So a lot of questions, if I group them together, are also on mostly like, isolation. Like, a lot of mothers are telling that nobody can control my kid. It's only me who can pacify my kid, or make him at peace. So how, like, if I test COVID positive, how can I isolate myself? What do I do? So there are a lot of questions, like, one of the family members is COVID positive, so how can I keep my kids safe? So a lot of questions related to that. So can you, and also related to breastfeeding. Yeah, the mothers are breastfeeding their kids, and how can I still breastfeed, or should I stop it? So related to this, if you can throw some light, that would be very helpful to the viewers.
यस डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आई टॉक अबाउट इट सबसे पहले. सो ब्रेस्ट फीडिंग का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. इफ यू टेस्ट पॉजिटिव you don't have to stop feeding your child. See, now I'll tell you why is that. When virus enters your body, you don't know it. Okay, next 2 to 3 days you start manifesting some symptoms. Okay, कुछ heaviness लगता है, something is not okay. After a day you start, probably you have fever, जुकाम खांसी कुछ आता है. अगले दिन तक आप लोग सोचते हो कि टेस्ट कराते हैं, हो सकता है कोविड हो, 2 दिन हो गए फीवर आ रहा है, एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 5 to 6 days यू डिसाइड कि बच्चे को दूर कर देते हैं क्योंकि मैं तो कोविड पॉजिटिव हूँ. बाय in those 5 to 6 days when you have virus with you, the kid is also with you. So in all probability your kid has already been exposed to the virus, but you decide to separate your kid from you at the time when antibody generation is already started in your body. If you feed your kid during those days, coming days, your child will receive those antibodies via milk. Okay, and that will help your child to fight this virus. तो जब वायरस स्प्रेड करने का टाइम था तब तो बच्चा आपके पास था, गलती से ही सही, बिकॉज यू डिडंट नो. बट जब आप उसको एंटीबॉडीज दे सकते हो, दूध पिला के उसको और दे सकते हो, तब आप बच्चे को अलग कर देते हो. तो सी, ब्रेस्ट फीडिंग WHO, हमारी कंट्री में भी जो बड़े बड़े WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, CDC है, जो कि US का अथॉरिटी है इन गिविंग ऑल द गाइडलाइंस, नन ऑफ देम से कि स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग. देन ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है 6 मंथ्स के लिए, तो वो तो आपको दूर नहीं करना है अपने बच्चे को, बहुत क्लियर है. ग्रे जोन है 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स, जब आपका 9 महीने का, 2 साल का, 1.5 साल का बच्चा है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करता है, साथ में कुछ खाता भी है. सो सी, अगर आपका बच्चा अपनी नानी, अपनी दादी या अपने फादर के साथ कंफर्टेबली रह लेता है और वो कोई सिम्टम नहीं शो कर रहा है, आपके पास ऑप्शन है उसको आइसोलेट करने का, तो आप कर सकते हो. ठीक है, जस्ट इन केस योर चाइल्ड वाज नॉट एक्सपोज्ड टिल नाउ, you might just save your child from the exposure. But if there is no such option, please don't keep yourself away from your child at cost of his mental health और his physical health. उसको रुला के, उसको चिड़चिड़ा करके, परेशान करके बिल्कुल कोई फायदा नहीं है. प्लीज कीप योर चाइल्ड विद यू. बच्चों में अगर कोविड होता भी है, इट इज वेरी माइल्ड, लाइक आई एम सेइंग, बच्चे बहुत आराम से बाहर आ जाते हैं. इसमें भी हमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखना होता है. अगर बच्चा आपसे दूर रह के दूध पीना बंद कर देता है, रोता रहता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, या उसको कोई और इन्फेक्शन लग जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है. कोविड से तो वो फिर भी आराम से निकल जाएगा. माँ के बिना बच्चे का रहना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. सो प्लीज डोंट मेक थिंग्स मोर डिफिकल्ट फॉर यू, नॉट जस्ट फॉर द किड. माँ भी बहुत परेशान हो जाती है. अभी तो हम ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों की बात कर रहे हैं. आई हर्ड 10-year-olds बच्चों की मदर्स टेलिंग मी कि बच्चा पहली बार मेरे से दूर हुआ है, आई एम नॉट फीलिंग वेल. तो प्लीज परेशान अपने आप को और बच्चे को बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है. ब्रेस्ट फीडिंग का तो बिल्कुल भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, वो आप अपने दिमाग से ही निकाल दो, आप आराम से फीड कर सकते हो बच्चे को. अदर देन दैट, बड़े बच्चे अगर सिम्टोमेटिक हैं और वो, आप ये बात समझ सकते हैं कि हमें अलग रहना है एक कमरे में, और वो सर्वाइव कर लेंगे आराम से, कि आप खाना देते हो बाहर से, वो खा लेंगे, रोज नहा लेंगे अपने आप से, फीवर होता है तो आपको बता देंगे, तो ठीक है, आप उसको अलग कर दो. आप सिम्टोमेटिक हो, बच्चा आपका छोटा है, कोई और है उसकी देखभाल करने के लिए, और आप इजीली, आई एम सेइंग इजीली आइसोलेट कर सकते हो अपने आप को, आप कर लो. अगर बच्चा 2.5 साल का, 3 साल का, 4 साल का है, आपके बिना नहीं रहता है, किसी और के पास नहीं मैनेज होगा, खाना पीना बंद कर देगा, रोता रहेगा, प्लीज आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है. आप मास्क पहन के रखो. बच्चा, ओके, यस, आई वांटेड टू टॉक अबाउट मास्क इन किड्स आल्सो. सार्वनी प्लीज रिमाइंड मी अगर हम मिस कर देते हैं. मास्क पहनने की भी एक एज होती है जो कि हमें Yeah. गाइडलाइंस दी हैं, ठीक है, तो वो हम उस पे आते हैं. तो मास्क आप पहन के रखो, बाकी जो भी सिम्टोमेटिक है घर पे पहन के रखिए. बच्चा 5 साल से बड़ा है, इजीली मास्क पहन सकता है, आप उसको पहना के रखो, अपने साथ रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आइसोलेशन तभी करना है जब इट इज ओके, इट इज इजी फॉर बोथ यू एंड योर चाइल्ड. इफ नॉट, प्लीज डोंट मतलब मेक थिंग्स मोर डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ. Yeah.
Yeah. So in this aspect, there are other questions also from Samrendra and a couple of other people saying that couple of like in one room, my father-in-law is COVID positive, is isolated. In the rest of the area, kid is roaming, and I have recovered, and but the kid also tested positive. He's mostly with his nanny who also tested positive. Yeah. So actually the question is, there are other viewers also who asked this. So suppose yes, COVID happened and we all recovered, are there any precautions to take later, especially in kids? So I think that's the crux of it, like, so lot, and the journey is going on because somebody is tested positive, after a week someone else tested positive, and we don't know, so there's long tenure in which the family members are COVID positive. So what should we do for the kids in this case? Okay, so you have to keep your kids' immunity up. That is all you have to do. COVID, post COVID, there are two states. And then there is one more confusing thing, reinfection. Okay, so that COVID tested positive, acute phase, 10 days, 7 days, 5 days, depending on your kid's immunity. Every child is different. Spectrum सब में अलग होता है. वो acute phase था, बच्चा ठीक हो गया आपका, उसके बाद वो ठीक रहता है 10 दिन 15 दिन. After that, there is probability that post COVID problems like post COVID laryngitis, गले में किचकिच बहुत लंबे टाइम तक रह सकती है. पोस्ट कोविड एंटराइटिस, लूज टूल्स, थोड़ी थोड़ी पॉटी बार बार करता रहता है, या पेट सेट नहीं है, दर्द बताता रहता है. दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन. ओके, पोस्ट कोविड फैरेंजाइटिस, मतलब बलगम, बड़ा बच्चा है तो बलगम बता रहा है, रेड थ्रोट है पूरा. इन सब चीजों के लिए आपको कांटेक्ट में अपने डॉक्टर के रहना है. कभी भी उन्हें लगता है कुछ देने की जरूरत है, बट मोस्टली बाय योर लाइक कुछ गले को सूद करने के लिए हनीटस आप सिरप दे देते हो, या आप घर में ही कुछ काढ़ा बना के पिला देते हो, वार्म वाटर, स्टीम इनहेलेशन, ऑल दीज थिंग्स हेल्प. और यूजुअली हमें पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स के लिए दवाइयां ज्यादा नहीं देनी पड़ती है, अनलेस बच्चे की स्लीप डिस्टर्ब हो रही है या डेली एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है बच्चे की, हमें कुछ नहीं देना पड़ता है. So yes, COVID, acute COVID, and then post-COVID state can be symptomatic in kids. Not just kids, adults also, but now we're talking about kids. Yes, problem हो सकती है. उसके बाद 2-3 महीने के बाद, मतलब फीवर भी आ सकता है. एक्चुअली मैं ये बोल दूं, पोस्ट कोविड स्टेट में फीवर भी आ सकता है, पर डरना नहीं है उससे. पर obviously you cannot be a judge of that. You have to be in contact with a pediatrician. So yes, talk to your doctor. Okay, and then reinfection. See, presently COVID के भाई बहन मैं बोलूं या different strains, if you understand that better, almost 11 strains आ चुके हैं. अभी दिल्ली एंड इंडिया इज द 5th country to isolate all 11 strains as of now. हो सकता है ये मैंने पढ़ा था पहले और अभी तक कोई नया strain भी बन गया. It is mutating that fast. Okay, so but yes, 11 strains. and इंडिया में मोस्टली जो दिल्ली पंजाब हरियाणा में जो बहुत ज्यादा हो रहा है, that is UK strain which is circulating. It is contagious, yes, and it is unpredictable, I would say. महाराष्ट्र और साउथ में ज्यादा इंडियन स्ट्रेन है, जिसके अगेंस्ट अभी हमारे पास ये न्यूज भी आई थी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज एडवाइजर मेन डॉक्टर एंटनी फॉसी हैं जो यूएस में, he said कि कोवैक्सीन जो हमारे पास वैक्सीन है इंडिया में, that is working well against this इंडियन स्ट्रेन. ओके, सो स्ट्रेन्स बहुत सारे हैं. रीइंफेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है नहीं है हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सब लोग टेस्ट नहीं कराते हैं. ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है. सिम्टम्स आते हैं एक जने को घर में, वो अपना टेस्ट कराता है, पॉजिटिव है, उसके बाद बाकी लोगों को सिम्टम्स आते हैं. बहुत कम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं जो सब अपना टेस्ट कराते हैं. बाकी बहुत लोगों को सिम्टम्स आते हैं, दे डोंट वांट टू गेट टेस्टेड बिकॉज इट इज स्टिल अ बिग टैबू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. ओके, सोसाइटी में प्रॉब्लम हो जाती है, घर को बंद कर देते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड. और टेस्टिंग बहुत इजी भी नहीं हो रही है दिल्ली में, तो भी टेस्टिंग होना करवाना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. तो इसीलिए ये पहला इन्फेक्शन है कि ये दूसरा इन्फेक्शन है, डॉक्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है असर्टन करना कि ये कौन सा इन्फेक्शन है. बट यस, क्योंकि इतने सारे स्ट्रेन्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ री इन्फेक्शन इज ऑल्सो देयर. लेकिन घर में जैसे आप बात करते हो, जो एक साइकिल सा चलता है, मम्मी को पहले फीवर आया, 3-4 दिन रहा, बच्चे को आ गया, मम्मी ठीक हो रही है, तब तक पापा को शुरू हो गया, पापा रिकवर कर रहे हैं, दादू को शुरू हो गया. ये जो चीज है मोस्टली एक ही फैमिली में सेम स्ट्रेन होगा. तो ऐसा नहीं होता कि जब तक आप और आपका बेटा रिकवर कर रहे हैं, दादू को सिम्टम्स आ रहे हैं, दादू दोबारा इन्फेक्शन दे देगा. ऐसा नहीं होता है.
ठीक है, बट हैविंग सेड दैट आपको अपने प्रिकॉशन सारे फिर भी लेने हैं, क्योंकि कोविड की बारे में हमें जितना पता है उससे बहुत ज्यादा अभी भी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है। मैं घर में अगर एक टाइम पे 5 लोग सिम्प्टोमेटिक है, अलग अलग कमरे में बंद होने का बहुत ज्यादा दिमाग मतलब वो नहीं है, जरूरत नहीं है। आप लोग सब साथ में ऑब्वियसली एक दूसरे को झपी पाके नहीं रहना है। You have to take your precautions, but you can help each other now that all of you are symptomatic. जब तक कोई भी symptoms के बिना है, उसको सबसे दूर रहना है, वो तो ऑब्वियस है। आइसोलेशन, मास्क, हैंड हाइजीन इज नॉट अ मतलब हैंड वॉशिंग, सोप एंड वाटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लीज। और सैनिटाइजर इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर हैंड वॉशिंग, प्लीज रिमेंबर दिस। 20 सेकेंड्स सोप अच्छे से लगा के बबल्स, मैं अपनी बेटी को ऐसे ही कराती हूँ, देखो कितने झाग बन गए, कितने झाग बन गए। या फिर कोई एक राइम, उनको ना ये पूरा राइम गाना है, तब तक तुम्हें हाथ धोने ही है करके 20 सेकेंड्स के लिए हाथ साफ करने की आदत बच्चे को डालनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। उसके अलावा जब हम हैंड हाइजीन की बात कर रहे हैं, मास्क हाइजीन के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। व्हेन यू हैव अ किड एट होम, डोंट लेट योर मास्क लाइंग अराउंड द हाउस। बच्चा कभी भी आके, आपको नहीं पता कौन से कमरे से उठा के उसको उल्टा लगा लेगा कि सीधा लगा लेगा। ठीक है, दूसरा क्लॉथ मास्क, सर्जिकल मास्क, और क्या तुम्हारा वो N95 तो जब तक आप एक आईसीयू में पॉजिटिव पेशेंट का राउंड्स ले, मतलब डॉक्टर्स को ही मुश्किल से मिल रहा है और वहीं पर जरूरत है। आप लोग अपना जो क्लॉथ मास्क है वो अच्छे से यूज करते हो, नाक के ऊपर मुंह ये पूरा सील बना के यूज करते हो, तो इट इज एज हेल्पफुल एंड एज इफेक्टिव एज सर्जिकल मास्क और एनी अदर मास्क। आपको कोई और मास्क की जरूरत नहीं है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हॉट मतलब हॉट 68 to 70 डिग्री से ऊपर पानी का टेम्परेचर होता है तो जिससे कोरोना वायरस इनएक्टिवेट हो जाता है। तो गर्म पानी में उसको डिप करके रखो थोड़ी देर, और उसके बाद डिटर्जेंट से उसको वॉश करो, as good as new. You can reuse it, and I would suggest after every 72 hours please change or wash your mask. ठीक है, दूसरा मास्क के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। लेस देन 5 year olds में मास्क WHO तो बोलता है कि पेरेंट्स विल हैव टू डिसाइड, ओके। लेस देन 2 year olds में बिल्कुल भी मास्क आपको नहीं लगाना है, क्योंकि वही रिस्क वर्सेस बेनिफिट हमें देखना है, तो बेनिफिट से ज्यादा रिस्क होता है। इन बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि मास्क को मैंने पहले ऐसे लगाया है तो दूसरी बार भी ऐसे ही लगाना है। दे माइट जस्ट पुट इट उल्टा, और नीचे लगाएंगे, हाथ पे सब वायरस आ गया, और वही हाथ अपनी मम्मी के मुंह पे या अपने पापा को धक्का या अपने ही मुंह पे लगा लेंगे। ठीक है, तो लेस देन 2 year olds में मास्क नहीं लगाना होता है, आप खुद मास्क लगा के रखो। ठीक है, दूसरा 5 years, अगर आपका 4 साल का बच्चा है, 3.5 साल का बच्चा है, आपको लगता है उसमें इतनी समझ है कि वो मास्क को अच्छे से हैंडल कर लेगा, तो अडल्ट सुपरविजन में आप लगा सकते हो, और अबव 5 years सबको लगाना है, बड़े बच्चों को भी लगाना है। ठीक है। Yeah, sure. Yeah, thank you. Next question is, we all know about, when there is symptoms, there is COVID, it's all about physical health. But a lot of us actually kind of, these days there's a lot of awareness on the mental health, either it is kids or the adults. So what are your suggestions to, to understand if there are any, first of all, any issues with the mental health? And if so, what are the precautions and what are the things that we need to take care of? ओके, सो बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज सबसे कम एड्रेस होते हैं। वी टॉक अबाउट डिप्रेशन एंड अडल्ट मेंटल हेल्थ की वो एड्रेस नहीं होता। आपको लगता है बच्चों में मेंटल इश्यूज नहीं होते या मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अ लॉट ऑफ पेरेंट्स केम टू मी लास्ट ईयर जैन फेब में, जब लॉकडाउन खुलने लगा था उसके बाद, कि बहुत अग्रेसिव है बच्चा, सब तोड़ फोड़ करता रहता है। ठीक है, देन अ फ्यू किड्स आई टेल यू, ये एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ कि 2-2.5 साल की उम्र में पॉटी सुसु सुसु बताने लगे, वाज ड्राई बाय डे एंड नाइट, एंड पॉटी भी बताने लग गया था। अभी पता नहीं से क्या हुआ है लॉकडाउन के टाइम में, या अभी पैंट में ही पॉटी कर देता है, या दोबारा से सुसु नहीं बताता है, कहीं भी सुसु कर देता है। सी ऑल दीज, एनीथिंग विच यू थिंक ठीक हो के गड़बड़ होने लग गई है बच्चे के साथ, या बहुत तोड़ने फोड़ने लग गया है और हमारी बात नहीं सुनता है, बदतमीजी करने लग गया है, ये बच्चे की सटल तो मतलब बोलने का तरीका है, मतलब बच्चे का तरीका है आपको बताने का कि आई सीक योर अटेंशन, आई वांट योर अटेंशन, यू आर नॉट गिविंग मी इनफ अटेंशन। सी व्हेन एवरीबॉडी इज एट होम,
मोस्टली इंडियन होम्स जो हमारा घर का सेटअप ऐसा रहता है, मदर इज द प्राइमरी केयर टेकर ऑफ द चाइल्ड, यस, एंड नाउ दैट लॉकडाउन में है सब कुछ, तो मम्मी ही खाना भी बनाती है, सबको खाना भी खिलाती है, सब घर में है तो बार बार खाना खिलाती है, कभी पकौड़े भी बनते हैं क्योंकि घर में सब हैं, कभी कुछ ज्यादा, रोज जितना काम करती है उससे 4 टाइम्स ज्यादा होम मेकर्स काम कर रही हैं प्रेजेंटली। मेड्स भी कई लोगों ने हटा दी होंगी अभी दोबारा, क्योंकि इतना लॉकडाउन और सब कुछ हो गया है, तो बहुत प्रॉब्लम्स है, और मदर बच्चे को अटेंशन नहीं दे पाएगी। फादर भी लैपटॉप पे बैठा है, वर्क फ्रॉम होम है, वो भी अटेंशन नहीं दे पाता है। तो ये सब मेंटल इश्यूज हैं बच्चे के साथ, जो वो आपकी अटेंशन लेने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको सटल चेंजेस उसके बिहेवियर में पकड़ने पड़ेंगे। पहले आप पकड़ोगे, स्पॉट करोगे, तभी आप उसको एड्रेस करोगे ना प्रॉब्लम को। तो ये सारी चीजें कोई बीमारी नहीं है या कोई बिहेवियरल ऐसे बड़ी बड़ी, आई रिमेम्बर गूगल करके पेरेंट्स आते हैं ना, एडीएचडी है मेरे बच्चे को तो मैडम में बहुत हाइपर, एक जगह नहीं बैठता है, या फिर इसको कुछ ऑन्कोपेरेसिस हो गया, ये हो गया, वो बड़ी बड़ी टर्म्स ना, it is all actually attention seeking behavior on your kids part। तो देखो, दो तरीके हैं इस सिचुएशन को देखने के। एक तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो सकते हो आप, इतना काम है, लॉकडाउन, घर में पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। एक तरीका है ये देखने का कि दिस इज वन गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड, टू इन्वेस्ट सम टाइम विद योर चाइल्ड। सो आपका आउटलुक जब चेंज होता है, जब पेरेंट्स खुश रहते हैं, या पेरेंट्स भी, वैसे तो मदर और फादर एक्चुअली अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, आई टेल यू। दादा दादी के साथ तो फिर भी थोड़ा बफर लगा रहता है घर में, नाना नानी दादा दादी कोई भी अगर ग्रैंड पेरेंट्स है, सो सी हस्बैंड वाइफ बोथ विल हैव टू शेयर एंड शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली फॉर किड्स ऑल्सो। हस्बैंड का काम सिर्फ लैपटॉप पे काम करना नहीं होगा, उसको भी बच्चे के साथ समय देना पड़ेगा। आप दोनों खुश रहोगे, बच्चे के साथ टाइम इन्वेस्ट करोगे, बच्चा आपका एकदम सेट रहेगा, आई एम टेलिंग यू। बट यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम फॉर दिस योर चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव वाइब, आप खुद मेडिटेशन करने अगर 2 मिनट ऐसे बैठोगे, बच्चा भी बैठेगा आपके साथ कि पापा मम्मी क्या कर रहे हैं, मैं भी करके देखता हूँ। और कुछ नहीं, आप गायत्री मंत्र 3 बार बोलते हो ना, वो उसको याद होता है, उस वो भी वो करके बहुत खुश होता है। I've seen a lot of schools have also started their first period as meditation class or yoga and pranayama class. So see, this is not a co-curricular extracurricular activity anymore. You have to mainstream it. It is very important. कई लोग बोलते हैं कि मैं अपना दिमाग ही नहीं शांत रख पाता मैडम, मैं बच्चे को क्या प्यार से रखूंगा। वही बात है, ये आपने समझा है, बहुत बड़ी बात है। तो प्रॉब्लम आपको पता है, आप अपने आप को शांत करो, टेक हेल्प। इफ यू नीड टू वेंट आउट, प्लीज टॉक टू योर वाइफ। वाइफ नहीं समझती, वाइफ ही परेशान कर रही है, तो टॉक टू योर सिस्टर, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू हुमेवर यू वांट टू। अभी डॉक्टर्स का मैं नाम इसीलिए नहीं ले रही हूँ, डॉक्टर्स ऑलरेडी बहुत बिजी है। आई टेल यू, मेरी बुआ की बेटी, मेरी फर्स्ट कजन, आई एक्चुअली स्कोल्ड देम कि भाई तुम माइल्ड केसेस हो, तुम क्यों, मेरा इतना अटेंशन तुम्हें चाहिए ना, बाकी लोग हैं जिनको सांस नहीं आ रहा है, उनका सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, मुझे उनसे ज्यादा बात करनी है ना। मतलब आई एक्चुअली स्कोल्ड माय लव्ड वंस, क्योंकि वो माइल्ड हैं, तो प्लीज अटेंशन सीकिंग बिहेवियर डॉक्टर्स के साथ अभी आप नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। तो आपको उनको भी समझना है, बट आपका अपना एक फ्रेंड सर्कल सबका होता है, प्लीज वेंट आउट, टॉक इट आउट। सबके पास प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि क्या कोई मेरे बारे में सोचेगा। मेंटल हेल्थ पेरेंट्स की जब सेट होगी, बच्चा अपने आप सेट हो जाएगा। एंड प्लीज सीक हेल्प, दैट इज ऑल आई नीड टू टेल यू। Yeah. Yeah. एक्टिविटीज Talking. इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जो कि मेरे को अब लगता है मेरे को अपनी बेटी को बिठाना चाहिए, बट शी इज टू स्मॉल फॉर इट नाउ, मेरे को लगता है। बट यस, कलरिंग, पजल्स, बोर्ड गेम्स, अगर आपका बच्चा बड़ा है, कुछ भी, और कुछ नहीं तो न्यूज़पेपर, और एक अगर आप कैंची लेके अपनी बच्चे को बिठा देते हो ना, यू सी वो भी 2 घंटे कर सकता है, पर वो Yeah. पहले आपको देखेगा आप क्या कर रहे हो। Yeah. So it's like that. True. And one more thing is here is, I personally feel even books are really, a, calm down agents. Like whenever my kid is like really bored, or, if I sit with books, even like my 1-year-old, like she's so excited, she just looks at the pictures. And I think that really calms down there and, kind of put them at ease. So books are also like, some things which I also rely on very, very much, and hence wanted to share. स्क्रीन Uh, टाइम बंद करके बुक टाइम कर दो, तुम्हारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, सीरियसली, फॉर yeah. ऑल ऑफ यू।
Yeah. And the next हाँ प्लीज question नेक्स्ट is क्वेश्चन आइए. because I'm just rushing because there are a lot of other questions regarding vaccinations. Yeah. So right now it's only, of course, from 18 years old, but anything with respect to kids. So is there a vaccination for kids, or if not, like, something about this topic of vaccinations? सी सबसे पहले वैक्सीनेशन 18 ईयर्स वैक्सीनेशन का मैं ब्रीफली फंडा बताती हूँ. बच्चों के लिए नहीं है, पहले 45 ईयर्स से नीचे नहीं थी, इसके लिए नहीं थी. क्या है, एक चीज तो है कि कोई भी वैक्सीन जब हम रोल आउट करते हैं, वी डू स्टडीज बिफोर दैट, एंड द एज जो पॉपुलेशन जो एज वाला हमने कोहॉर्ट लिया होता है, जिनके ऊपर वो टेस्ट किया होता है, उनमें अगर साइड इफेक्ट्स नहीं है, वी से दिस वैक्सीन इज सेफ फॉर दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप. अभी तक क्योंकि कोई भी अपने बच्चे के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता है, किसी भी ट्रायल में बच्चे एनरोल नहीं किए गए थे, तो इसीलिए कोई भी वैक्सीन बच्चों के लिए नहीं है. ठीक है, पहले हमने बड़े लोगों पे ट्राई किया था, फिर यंग एडल्ट्स पे ट्राई किया था, उनके लिए वैक्सीन अब हमारे पास है. ठीक है, बच्चों के लिए प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेटिंग मदर्स, ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेटिंग मदर्स को तो लेना है वैक्सीन. अब जितनी भी गायनेकोलॉजिकल बड़ी बड़ी तुम्हारी अथॉरिटीज हैं, फॉक्सी हो गया, आरसीओजी हो गया, जो गाइडलाइंस बनाते हैं, दे ऑल से प्लीज टेक योर वैक्सीन बिकॉज दिस इज अबाउट लाइफ एंड डेथ. ठीक है, थोड़ा बहुत वायरल शेडिंग मिल्क के थ्रू बच्चे के पास आता है, उसका इतना रिस्क नहीं है जितना मदर को कोविड होगा तो रिस्क हो जाएगा. ठीक है, तो यू आर supposed to take vaccine. Pregnant females are also now being considered for vaccines. कि हाँ आप भी ले सकते हो, but yes, before going for your vaccination, do talk to your gynecologist क्योंकि मैं authority नहीं हूँ to tell pregnant females to go and take the vaccines. बच्चों का फाइजर और मॉडर्ना जो दो बड़े यूएस में जो दोनों मेन ब्रांड्स चल रहे हैं, उन दोनों ने बच्चे अपने ट्रायल्स में इंक्लूड करना शुरू कर दिया है. तो प्रोबेबली in a few months we'll have vaccines for kids also. As of now, कोविशील्ड या कोवैक्सिन दोनों में से किसी के भी ट्रायल में बच्चे पार्ट नहीं थे, तो कोवैक्सिन और कोविशील्ड हम नहीं बोल सकते कि बच्चों में आप ले सकते हो. इसीलिए गवर्नमेंट अभी तक नहीं कुछ इनिशिएटिव ले ही नहीं सकती क्योंकि अभी तक ट्रायल्स में नहीं है. ऐसे किसी का भी बच्चा गिनीपिग नहीं बना सकते हो. बट वैक्सीन, व्हेन वी टॉक अबाउट वैक्सीन और अदर वैक्सीन, जो कि बच्चा पैदा होता है तो कार्ड बना के देता है ना आपको पीडियाट्रिशियन, निमोकोकल, एमएमआर, दिस एंड दैट, प्लीज वो आपको नहीं मिस करनी है. आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दीज टाइम्स टू गो विजिट अ डॉक्टर फॉर अ वैक्सीन. हॉस्पिटल में भी कोविड पेशेंट्स होते हैं, आप डरे हुए हो कि मेरे बच्चे को, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा एमएमआर की वैक्सीन लगाने और बच्चे को कोविड हो जाएगा. But there are some doctors who are not seeing COVID patients, or there are doctors who have different rooms, different corridors, different setup for non-COVID patients, जो कि well babies हैं, who are coming only for the vaccination. Okay, so please seek और सीख ये वाले डॉक्टर्स या ऐसी जो फैसिलिटीज है, पर वैक्सीनेशन शुड नॉट बी मिस्ड. आई एम अगेन एंड अगेन एम्फसाइजिंग, कोविड इज वेरी माइल्ड इन किड्स. कोविड के टाइम में अगर बच्चे को निमोकोकस का निमोनिया हो जाता है या मीजल्स हो जाता है, जो कि एक दो बच्चों को सिरसा में जब मैं थी हुआ भी था, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस अभी भी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कोविड. सो रिमेंबर दिस, जो आपकी रूटीन वैक्सीनेशन है, यू आर नॉट सपोज टू मिस देम. 2 दिन 2 हफ्ते से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डोंट कीप सिटिंग एट होम. जो टाइम आपके बच्चे की वैक्सीनेशन का ड्यू है वो आपको लेना चाहिए. और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अभी मैं जो भी बोल रही हूँ, आई वेंट बैक एंड रेड अप अच्छे गाइडलाइंस, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ. दिस इज नॉट वन पीडियाट्रिशियन टॉकिंग, दिस इज द गाइडलाइंस फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब ऑल अस पीडियाट्रिशियंस. तो वैक्सीन आर नॉट टू बी मिस्ड. बच्चों के लिए नियर फ्यूचर में रहेंगी, आप सब वैक्सीन लगवाओ. ये बिल्कुल नहीं सोचना है क्या साइड इफेक्ट है क्या नहीं. कोई वैक्सीन आज तक ऐसी नहीं आई जिससे कोई पेशेंट मरा नहीं हो. एंड एमएमआर, डीटीपी, इन्फेरिक्स, हेक्साजिम, आप कितने, अगर आपको अपने बच्चों की वैक्सीन पता हो, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता या जिससे कभी कोई डेथ नहीं हुई. कोविड अभी मीडिया के लाइमलाइट में है, तो उसकी वैक्सीन से कुछ भी होगा तो सबसे पहले वो लोग उसको हाईलाइट करेंगे कि हाँ वैक्सीन लगी और मर गया पेशेंट. ठीक है, बट हर वैक्सीन का कुछ ना कुछ बॉडी में, हर बंदे की बॉडी अलग है, हमें नहीं पता कैसे रिएक्ट करेगी. इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रोटेक्शन, जो 100 में से एक बंदा ड्रॉप डेड, बट 99 जो उससे प्रोटेक्ट हो गए, एंड प्रोटेक्शन इज देयर. आई एम टेलिंग यू, एक सिंगल वैक्सीन से भी जो सिवेरिटी है वो बहुत नीचे आ जाती है.
तो प्लीज डोंट मिस योर वैक्सीन्स. वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और अब तो 18 ऑनवर्ड्स आप सब पेरेंट्स एलिजिबल हो वैक्सीन के लिए. तो जैसे आपको मौका मिलता है प्लीज आप लोग वैक्सीन जरूर लगाओ. बच्चा नहीं वैक्सीनेट हो सकता लेकिन उसके आसपास अगर सब वैक्सीनेटेड हैं, ही विल बी प्रोटेक्टेड एनीवे. This is Yeah. called cocooning Yeah. strategy while vaccinating. Okay, so make a cocoon around your child, protect him by vaccinating yourself and all your family members. Encourage Yeah. your society members also, क्योंकि आपके बच्चे के आसपास वो लोग भी आएंगे. Yeah. Okay, Yeah. so let's go Yeah. to next question. I think I Yeah. made myself So I clear yeah. कि vaccine So लेना है. yeah, that's a really important message. And last 5 minutes we have, so we'll take one of the parents' questions. Rajpal was asking, "Ma'am, how to teach my children in an easy way?" Wow, I'm not a teacher. पर आई थिंक जो हूँ अपनी बेटी के साथ है, सी यू हैव टू टीच. अगर आपका बच्चा 2-3 साल का है तो टीचिंग हैज टू बी वेरी प्लेफुल. ठीक है, यू हैव टू मेक अ गेम आउट ऑफ इट. सो ए बी आजकल तो स्कूल्स में वैसे आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि भाई टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं. दे एक्चुअली मेक गेम एंड Wow. राइम्स एंड Yeah. डांस एंड ड्रामा, एवरीथिंग. बट यस, बच्चे को देखो, मैं वही बोल रही हूँ, बच्चा फॉलो आपकी कमांड्स फॉलो नहीं करेगा. बच्चा कुछ भी सीखता है देख के. जो आप करोगे वो आपका बच्चा सीखेगा. जो जैसे आप तमीज से बात करोगे बच्चा सीखेगा. वन फाइन डे योर किड कम्स एंड गिव्स वन गंदा गाली इन फ्रंट ऑफ यू. इट इज नॉट कि उसको किसी ने सिखाया है, वो उसने सुना है आपको या आपके आसपास किसी को बोलते हुए. सो रिमेम्बर, जो आप बोल रहे हो, जैसे आप बिहेव कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, बिल्कुल सेम बच्चा आपके साथ बिहेव करेगा कभी ना कभी नियर फ्यूचर में. तो बच्चे को सिखाना है तो यू हैव टू बिकम अ स्टूडेंट योरसेल्फ. बैठो, आप खुद सीखोगे उसको, बच्चा अपने आप सीख जाएगा. So Yeah. I'm saying I'm not an authority on that. I'm not a teacher. Teachers are doing absolutely brilliant job these days. Yes. Yes. Online पढ़ाना Yes. बहुत मुश्किल है. But Yeah. yes, I think learning would be easy if you become their friend. Yeah, yeah, true. And in fact, I also should say, a lot of working mothers, and so even if they don't hear from us, they would definitely learn from their friends. Yeah. So if it's kind of a community, and we all should, like, be an example, right? Every kid, every person, like as you were telling, doctor, everybody should be an example, so that they're only taking all the positives. And yeah, so I think, Yeah. the just, last 3 minutes. So I think, we all kind of really understood a lot of good aspects today. So probably I'll summarize a little bit on what I have taken. So first thing is what doctor was mentioning to us: please stay indoors. Please have that analysis on whether we need to really go out. Is it really worth that risk taking? Whether even if I get COVID, okay, this work shouldn't stop. So please have that analysis. Please, I mean, there are a lot of systems in place right now. Even when compared to last year, we are getting our groceries at home, medicines at home, everything is coming to your doorstep. So please utilize all those channels and stay home. That's the first message I also took, and I also want to emphasize this. And the second thing doctor was also telling us is, please get vaccinated. That's the only thing probably we can make sure that the environment around all the kids is safe. So please, all of you, get vaccinated. As doctor was mentioning, there are studies going on, so there might be vaccines available for all of our kids also. But the first thing that we have to take care is, we need to get vaccinated. We have to have that environment. And there are a lot of questions on like, the symptoms of COVID, and doctor has explained that. So please, first of all, do not panic. And if there is something, also do not neglect. So that's what I understood from today's talk show. So if we are having if there is some symptom in our kids, so just, without panicking, we have to think on what should be done. We have to consult the doctors, and whatever precautions like steaming, gargling, and yoga, pranayama, meditation, all those things, we have to, that's what is in our hands. So we have to do that. Yeah. That's the third thing. And I have learned in this session. And the last thing is, a lot of people are, how do we engage our kids? That's one of the
most common questions that I'm seeing here. So doctor has told, teachers are doing a great job. They are telling they have already through online education, they are instilling this hygiene behavior in the kids, wash your hands and everything. So kids know these days. And everything, like doctor, you are telling a playful method, like if we are actually being more patient. Of course, I understand these are stressful situations for us, but we need to take that action of being more, being more playful, being very patient. I'm telling this to myself. I know how probably frustrated I would be sometimes, but I think I'm telling this to myself as well. We need to be more patient towards our kids. So thank you so much. We are dot on 12, and in this aspect, I also say please utilize this super duper platform to make your kids super duper. So there are a lot of good challenges, and how to instill your corona warrior behavior. There's one challenge. So these are all the ways we can also instill that kind of behavior in our kids. Thank you so much, Dr. Madhavi. These kind of direct information from a doctor is something we could trust, right? There's so much information in the media, but everything is not something we could trust. So thank you so much for taking time, and we understand there are so many people who need your attention at this point of time. But thank you so much for coming onto our platform and sharing this wonderful facts with us. Thank you so much. Sure, pleasure was all mine. Actually, मैंने अपना काम कम किया ना, बहुत सारे लोगों को पता चल गई information, so they'll not Yes. directly message me. Thank you so much. True. Do take care Yeah. of yourself. Stay home, stay safe, and don't take this time as a burden. Enjoy it. ठीक है? Yeah. Invest it with your kids. ऐसा time दोबारा नहीं मिलेगा आपको जो आप बच्चे के साथ time spend कर सको. So ठीक है, चलता है. अच्छे से Yeah. निकल जाएगा. Yeah. Stay positive. Stay happy. Stay positive. Thank you so much, all our viewers who are there with us. We hope you have a great weekend and great time ahead. We will see you all in some other session. Stay safe, stay indoors. Thank you so much. Namaste.